So today this is part 5 of determinant. In this part we will be discussing about the properties of determinant. So far we have discussed the expansion of third order determinant and second order determinant. So it is not always easy to expand it is not easy to evaluate determinant by expanding only, because sometimes expanding becomes very difficult. So for that situation we have some properties by which we can make calculation of determinant easy. So today our target is to learn those properties which will help us in calculation of determinant. So let us see those properties. I will explain all these properties in different way that you will not find in any book anywhere. It is a unique style to teach the properties of determinant. And then we will take some example also. We cannot solve more questions in this part because generally questions are based on all the properties. So we will, as far as possible, I will take some example to explain the property. So let's start first part. Basic properties of determinant. So write property 1. Properties 1. Now you can call this property as reflection property. Reflection property. Now Ri interchanged with Ci. So what is the meaning of this operation? What is the meaning of this operation? So write the meaning. All the rows are interchanged with corresponding columns. Now what will be the effect of this operation on the determinant? So effect will be the value of new determinant remains same as that of old determinant. Now see, this is the symbol for this property. इस सिंबल का मतलब क्या हो गया कि डिटरमिनेंट का सारा रोज, जितना भी रोज है उसको कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दे रहे हैं. मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ. तो अगर सारे रोज को कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर चेंज कर दिया जाए तो वैल्यू के डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. लेट्स सी द एग्जांपल. Suppose one determinant is given to you: a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3. Now this is called first row r1, this is called second row r2, and this is called third row r3, and this is first column, second column and third column. Now suppose we are changing the रोज इनटू कॉलम. मान लो कि आप सारे रोज को कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हो. फर्स्ट रो, सो फर्स्ट रो को आप, जो फर्स्ट रो है a1 b1 c1, क्लियर, उसको आप फर्स्ट कॉलम बना रहे हो. सो a1 b1 c1. व्हाट वी हैव डन हियर, फर्स्ट रो इज चेंज्ड इनटू फर्स्ट कॉलम. नाउ सेकंड रो, क्लियर, नाउ सेकंड रो इज चेंज्ड इनटू सेकंड कॉलम. a2 b2
C2. Now third row it changes into third column, A3, B3, C3. So इस यहाँ पे हम लोग किए क्या है, so you can indicate this operation by symbol RI interchange with CI. ये सिंबल हो गया, यानी कि आप सिंबॉलिकली क्या बोलना चाह रहे हो कि जो कोरस्पॉन्डिंग रोज है, क्लियर, उसको कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर दिया गया, क्लियर। जो फर्स्ट रो था उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया गया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। सो जब आप किसी डिटरमिनेंट के सारे रोज को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो ये जो न्यू डिटरमिनेंट मिल रहा है, ये न्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू वही होगा जो प्रीवियस डिटरमिनेंट का है, क्लियर। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम एज दैट ऑफ द ओल्ड डिटरमिनेंट। इस न्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू इस ओल्ड डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल ही रहेगा। इट मीन्स दीज टू डिटरमिनेंट्स आर इक्वल। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ना इसका एडवांटेज क्या है, इस प्रॉपर्टी का एडवांटेज क्या है, आप जब चाहो जो डिटरमिनेंट रो वाइज दिया हुआ है उसको आप कॉलम वाइज में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ना इस प्रॉपर्टी से एक बात तो और क्लियर है कि whatever statement is true for rows, same statement will be true for column also। इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट में जो बात रो के लिए सही है, यानी कि जो रूल रो में लागू होगा वही रूल क्या होगा, कॉलम में भी लागू होगा। जो स्टेटमेंट, जो प्रॉपर्टी रो के लिए ट्रू है, सेम प्रॉपर्टी वो कॉलम के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। बिकॉज आप रोज और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। जब भी आपको डिटरमिनेंट में सारे रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट करना है तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 property 2 you can call it switching property, switching property or switching operation। See, RI interchanged with CI, sorry not CI, RJ, RI interchanged with RJ। So what is the meaning of this symbol? What is the meaning of this symbol? What is the meaning of this symbol? So meaning of this symbol is two rows are interchanged with each other, with each other। The meaning of this symbol is two rows are interchanged with each other, any two rows are interchanged with each other। Now what will be the effect of the determinant? अगर ये ऑपरेशन को अप्लाई किया जाए डिटरमिनेंट पे तो डिटरमिनेंट पे क्या इफेक्ट होगा। अगर आप किसी डिटरमिनेंट में ये ऑपरेशन को अप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो आंसर विल बी द साइन ऑफ न्यू डिटरमिनेंट changes, the sign of new determinant changes। So what does it mean? So with the help of example you can see, suppose this is one determinant A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, clear। Now ये ऑपरेशन क्या, ये ऑपरेशन हमसे क्या कहता है कि when any two rows are interchanged with each other,
अगर कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज किया जाए, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्विचिंग प्रॉपर्टी। कोई दो रो को आपस में स्विच किया जाए, सो व्हेन एनी टू रोज आर इंटरचेंज्ड, then what will be the effect on the determinant? The sign of determinant will change. It means the numerical value of determinant will remain same, but the sign of new determinant will change. So what does it mean? Suppose this is a determinant. Now अगर मान लीजिए कि आप किसी दो रो को आपस में क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। मान लो कि हम इस रो को आपस में स्विच कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो को थर्ड रो और थर्ड रो को फर्स्ट रो बना रहे हैं, फर्स्ट रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो को अगर आपस में इंटरचेंज किया जाए तो फर्स्ट रो हो जाएगा A3 B3 C3 एंड थर्ड रो हो जाएगा A1 B1 C1 एंड सेकेंड रो एज इट इज हो जाएगा, बिकॉज आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो फर्स्ट रो और थर्ड रो में। सो यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने किया है कि R1 इज इंटरचेंज विथ R3। फर्स्ट रो और थर्ड रो आपस में इंटरचेंज हो गया, सेकेंड रो एज इट इज है, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आपस में इंटरचेंज हो गया है। सो व्हेन एनी टू रोज, कोई भी दो रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट रो थर्ड रो, सेकेंड रो थर्ड रो, व्हेन एनी टू रोज आर इंटरचेंज्ड, देन साइन ऑफ न्यू डिटरमिनेंट चेंजेस। ये ओल्ड डिटरमिनेंट हो गया, ये न्यू डिटरमिनेंट हो गया, दोनों में अंतर क्या होगा, इन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगा बट साइन डिफरेंट रहेगा। इसका मतलब है कि अगर इसको इवैल्यूएट करने पे अगर 100 आता है तो इसको इवैल्यूएट करने पे -100 आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बोथ द डिटरमिनेंट विल बी सेम, ओनली देयर विल बी चेंज इन साइन। अगर इसको सॉल्व करने पे +100 आए तो इसको सॉल्व करने पे -100 आएगा, इसको सॉल्व करने पे अगर -100 आ रहा है तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, +100। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, साइन चेंज कर जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों इक्वल हो, ऑब्वियसली ये दोनों तो अभी इक्वल है नहीं, दोनों का साइन में अंतर है, तो अगर आप चाहते हो कि दोनों को हम बैलेंस करें तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी आपसे क्या कहता है कि इफ यू वांट टू इंटरचेंज एनी टू रोज ऑफ डिटरमिनेंट देन यू कैन चेंज, बट व्हाट यू हैव टू डू, you have to change the sign of the determinant to make it balanced. Clear? So here we can write, it means to balance the new determinant with old one, change the sign. Change the sign. तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हो तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, बट ध्यान देना है आपको साइन चेंज कर देना है, तभी दोनों डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर आप ये माइनस साइन नहीं दोगे तो ये दोनों इक्वल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के वैल्यू में साइन का अंतर रहेगा, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों बैलेंस हो जाए तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो अभी दोनों डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्विचिंग प्रॉपर्टी। क्लियर ना? इस प्रॉपर्टी से आपको फायदा क्या है, इस प्रॉपर्टी से आपको फायदा क्या है, आप चाहो तो रोज को शिफ्टिंग कर सकते हो, आप रोज के पोजीशन को शिफ्टिंग कर सकते हो। मान लो जो चीज़ थर्ड रो में दिया हुआ है उसको आप सेकेंड रो में शिफ्ट करना चाहते हो, या फिर सेकेंड को फर्स्ट में शिफ्ट करना चाहते हो, तो आपको रोज को शिफ्ट करने में क्या होगा, ये प्रॉपर्टी का यूज होगा। क्लियर ना? सेम प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी ट्रू है। क्लियर? CI इंटरचेंज विथ CJ, मतलब आप सेम काम कॉलम के साथ भी कर सकते हो। और फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम बोल चुके हैं, है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने बता चुका है कि व्हाटएवर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर रोज, सेम प्रॉपर्टी विल बी ट्रू फॉर कॉलम ऑल्सो। सो जो प्रॉपर्टी हम रोज के लिए सही बता रहे हैं वो कॉलम्स के लिए, वो प्रॉपर्टी आप कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हो, और ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से क्लियर है। क्लियर ना? Now third property, property 3,
it is identical rows or columns property. So Ri is equal to Rj. So what is the meaning of this operation or this symbol? Two rows are equal. So if any two rows of determinant are equal, similar, then two rows are equal, then what will be the effect? Value of determinant is zero. इसका मतलब है कि किसी भी डिटरमिनेंट में से कोई भी दो रो अगर सिमिलर है, सेम है, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू इमीडिएटली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. एग्जाम्पल, जैसे आपसे बोला जाए कि 5 6 7, नाउ 7 9 11 एंड 5 6 7, इसका वैल्यू क्या होगा? इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? So you can see here the first row, it is second row and it is third row. So you can see that these two rows are equal. First row and third row are equal. So since in this determinant these two rows are equal, so according to this property, value of determinant will be zero. अगर ये दो डिटरमिनेंट, ये दो रो इक्वल है, तो दोनों का वैल्यू, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो इस केस में एक्सपेंड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक्सपेंड करने के बाद भी इसका वैल्यू जीरो ही आएगा. सो इमीडिएटली यू कैन राइट जीरो. क्लियर? नाउ एंड सेम प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर कॉलम ऑल्सो. See, whatever property I will say for row, same property will be true for column also. So किसी भी डिटरमिनेंट में, क्लियर, कोई दो रो आपस में अगर इक्वल है, सो इमीडिएटली उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो. देयर इज नो नीड ऑफ एक्सपेंशन. इमीडिएटली यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो. एंड सिमिलरली इफ टू कॉलम्स आर इक्वल, देन ऑल्सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो. Now property 4. Now suppose operation is Ri is replaced with, or let me write here, common multiple property. So what do you mean by common multiple property? Clear? Now if each element of any row has common multiple, then the common multiple can be taken outside as factor. Clear? Example, suppose this is the given determinant, a1
lambda times A1, lambda times B1, lambda times C1, and A2, B2, C2, A3, B3, C3. Now suppose this determinant is given to you. Clear? Now you can see in the first row each element has common multiple lambda. क्लियर? फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट में कॉमन मल्टीपल क्या है? लैम्डा है. तो आप इस लैम्डा को डिटरमिनेंट से आप बाहर निकाल सकते हो. क्लियर? किसी भी एलिमेंट में कॉमन मल्टीपल, किसी भी रो के सारे एलिमेंट में अगर कॉमन मल्टीपल है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो. बस शर्त है कि उस रो के हर एक एलिमेंट में कॉमन मल्टीपल होना चाहिए. क्लियर? ना अगर दो रो में कॉमन मल्टीपल है तो आप दोनों रो से अलग अलग निकाल सकते हो. अगर इफ 3 rows हैज कॉमन मल्टीपल देन तीनों से आप अलग निकाल सकते हो. सो लेट अस सी सम मोर एग्जांपल. Suppose one determinant is given to you. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now suppose it is 7. Now suppose it is given here 40, 50, 70. Clear? Now you can see in the third row each element has common multiple. See 40, 50 और 70. इसमें 10 कॉमन मल्टीपल है. 10 into 4, 10 into 5, 10 into 7. क्लियर? सो किसी भी रो के सारे एलिमेंट में अगर कॉमन मल्टीपल है तो आप उस कॉमन मल्टीपल को बाहर निकाल सकते हो. सो यहाँ पे 10 को थर्ड रो से आप 10 को बाहर निकाल सकते हो बिकॉज 10 इसके सारे एलिमेंट में कॉमन मल्टीपल है. सो आप 10 को बाहर निकाल लो तो यहाँ बच जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड हियर यू विल गेट 4, 5, 7. सो किसी भी रो के सारे एलिमेंट में यदि कॉमन मल्टीपल है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो. ना इससे फायदा क्या होगा कि डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट है वो छोटा हो जाएगा. क्लियर? वो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डिटरमिनेंट वो इजी हो जाएगा. देन उसका एक्सपेंशन भी क्या होगा? इजी होगा. सो लेट अस एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन. So let me write one question which is asked in CBSE. Question is evaluate determinant 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6x, 9x and 12x. So we have to evaluate this determinant and it is question of CBSE All India 2009. Clear? So it was the question of CBSE 2009. Now suppose कोई इस determinant को आपको evaluate करना है. So evaluate करने के लिए आप क्या करोगे? तो solution determinant 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6x, 9x, 12x. आप ध्यान से ऑब्जर्व करो. क्लियर? तो आप देखते हो कि जो थर्ड रो है, थर्ड रो के सारे एलिमेंट में कॉमन मल्टीपल है. कॉमन मल्टीपल क्या है? 6, 9 और 12 में कॉमन मल्टीपल क्या है? 3. 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4. सो 6, 9 एंड 12 में कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? 3. और ऑब्वियसली x भी कॉमन मल्टीपल है. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, if each element of any row has common multiple, then you can take that common multiple outside as a factor. So यहाँ पे हम क्या करें? फर्स्ट रो j कहते हो लिख दो, सेकेंड रो j कहते हो एज इट इज, एंड थर्ड रो के हर एक एलिमेंट में कॉमन मल्टीपल क्या है? 3x है. Clear? Obviously x is common multiple and 3 is common multiple of 6, 9 and 12. 6 2 is 6, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12.
सो यहाँ से 3x को अगर फैक्टर बाहर निकाल लिया जाए तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर बच जाएगा 2, बिकॉज 3x इंटू 2 इक्वल टू 6x। और 9x में से अगर फैक्टर 3x को बाहर निकाल लिया जाए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3x इंटू 3 इज 9x एंड हियर वी विल गेट 4। सो what we have done here, taking common multiple 3x from R3 ना, उसका कॉमन मल्टीपल को बाहर लेने के बाद अब ध्यान से आप देखो फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गया। फर्स्ट रो इज 2 3 4 and third row is also 2 3 4. So since first row and third row are equal, and what we have said in the third property, if any two rows are equal, then the value of determinant is 0. So obviously its value will be 0. And why? Because R1 and R3 are similar. So value of determinant will be 0. So what is the value of this determinant? 0. So I think you have got the property कॉमन मल्टीपल प्रॉपर्टी। जब भी आप डिटरमिनेंट सोल्व कर रहे हो और किसी भी रोज में सारे एलिमेंट में अगर कॉमन मल्टीपल मिल जाए तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो। बस शर्त ये है कि जिस रो से आप कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हो उसके सारे एलिमेंट में कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। अगर दो रो में कॉमन मल्टीपल है तो दोनों से अलग अलग निकाल लो। सपोज करो एक रो में कॉमन मल्टीपल 2 है और दूसरे रो में कॉमन मल्टीपल 5 है, तो 2 भी बाहर निकलेगा एज ए फैक्टर और 5 भी बाहर निकल जाएगा ना। अगर 3 रोज में कॉमन मल्टीपल है अब तीनों रो से अलग अलग निकालो। क्लियर? Now same property is also true for column. Again and again I'm saying that whatever property is true for row, same property will be true for column also. मतलब यही काम आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो। अगर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट में कॉमन मल्टीपल है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो। सिमिलर। Now property 5. Clear? So Ri is replaced with lambda times Ri. So what is the meaning of this symbol? You can guess from here. ith row is replaced by lambda times ith row. इसका मतलब है कि आप ith row को lambda से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सिंपली what is the meaning of this operation? All elements of any row is multiplied with common factor lambda. All element of any row is multiplied by common factor lambda, or common number, simply we can write lambda. So what will be the effect? Clear? What will be the effect on determinant? What will be the effect after applying this operation? What will be the effect on the determinant? अगर आप ये ऑपरेशन को अप्लाई करते हो डिटर्मिनेंट में तो डिटर्मिनेंट में इफेक्ट क्या पड़ेगा? So new determinant becomes lambda times the old one. मतलब जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा आपको वो पुराने डिटर्मिनेंट का लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। Therefore, hence to balance the new determinant with old one, divide the new determinant by lambda. एग्जाम्पल से आप समझो। जैसे मान लो कोई डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2
A3 B3 C3. Suppose this is the determinant. Now आप चाह रहे हो कि आप फर्स्ट रो को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें. क्लियर? आप चाह रहे हो कि फर्स्ट रो को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें. दैट मीन्स फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा. लैम्डा A1, लैम्डा B1, लैम्डा C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. क्लियर? सो आप यहाँ पे किए क्या हो, फर्स्ट रो को आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए. इसको आप दिखाओ कैसे, लिखोगे कैसे? आप इसको लिखोगे R1 इज रिप्लेस्ड बाई लैम्डा टाइम्स R1. दिस इज द सिंबल फॉर दिस ऑपरेशन. क्लियर? इसको देख के एग्जामिनर समझ जाएगा आप कर क्या रहे हो, R1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हो. सो अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी रो को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस डिटरमिनेंट में और इस डिटरमिनेंट में अंतर क्या आएगा? अंतर ये आ जाएगा कि इसका वैल्यू जो है इसका लैम्डा टाइम्स हो जाएगा. मतलब इसको सोल्व करने पे अगर मान लो कि तुम्हारा 10 आता है तो इसको सोल्व करने पे 10 लैम्डा आएगा. तो ऑब्वियसली कि दोनों इक्वल तो नहीं होगा, अभी तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज इसका वैल्यू जो है वो इसके डिटरमिनेंट का इस डिटरमिनेंट का लैम्डा टाइम्स हो गया. जो भी इसका वैल्यू रहेगा, इसका वैल्यू इस डिटरमिनेंट का वैल्यू उसका लैम्डा टाइम्स हो जाएगा. तो ऑब्वियसली कि दोनों डिटरमिनेंट इक्वल तो नहीं है. तो व्हाट आई हैव रिटन, हेंस टू बैलेंस द न्यू डिटरमिनेंट विद ओल्ड वन डिवाइड द न्यू डिटरमिनेंट बाय लैम्डा. तो अगर आप चाहते हो कि दोनों इक्वल हो जाए, आप इन दोनों को अगर इक्वल बनाना चाहते हो, जो कि ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, तो इन दोनों को अगर आप इक्वल बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 1 बाई लैम्डा कर देना होगा. तो अब क्या हो जाएगा कि ये लैम्डा टाइम्स था और लैम्डा से डिवाइड हो गया तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा. सो दोनों डिटरमिनेंट आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया. तो ये डिटरमिनेंट आपको क्या अलाउ कर रहा है कि आप किसी भी रोज को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट शर्त है कि उसको बैलेंस करने के लिए आप उसको बाहर में उससे डिवाइड भी कर देना. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. Suppose this is one determinant A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. Clear? Now suppose first row of this determinant is multiplied by lambda. Lambda A1, lambda B1, lambda C1, and the second row is multiplied by mu. Mu A2, mu B2, mu C2, and third row is multiplied by delta. Delta A3, delta B3, delta C3. So यहाँ पे आपने किया क्या है, फर्स्ट रो को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है, सेकेंड रो को म्यू से एंड थर्ड रो को डेल्टा से. सो इसको आप सिंबॉलिकली कैसे लिखोगे, यानी आप एग्जामिनर को कैसे बताओगे कि आप क्या किए हो? तो आप लिखोगे R1 इज रिप्लेस्ड बाय लैम्डा टाइम्स R1, R2 is replaced by mu times R2, and R3 is replaced by delta times R3. आप ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि आप कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो. इसका मतलब है कि आप R1 को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, R2 को म्यू से और R3 को डेल्टा से. तो ऑब्वियसली जब आप इस डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू इसके वैल्यू का लैम्डा टाइम्स हो जाएगा. फिर आप म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऑब्वियसली कि उसका वैल्यू इसका म्यू टाइम्स हो जाएगा. क्लियर? और आप डेल्टा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका वैल्यू डेल्टा टाइम्स में हो गया. तो इसका मतलब है कि ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल तो नहीं है, बिकॉज इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो लैम्डा इंटू डेल्टा इंटू म्यू टाइम्स, लैम्डा टाइम्स म्यू टाइम्स डेल्टा टाइम्स, इतना मल्टीपल हो जाएगा. तो अगर आप इन दोनों को बैलेंस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि दोनों डिटरमिनेंट को हम इक्वल बना दें, जो कि ऑब्वियसली अभी ये इक्वल तो नहीं है, अभी ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल तो नहीं है. क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि जैसे ही आप इस डिटरमिनेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू लैम्डा टाइम्स हो गया. फिर आप म्यू से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली कि म्यू टाइम्स भी हो गया, और जब आप इसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका वैल्यू डेल्टा टाइम्स भी हो गया. मतलब इस पूरे डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो लैम्डा इंटू म्यू इंटू डेल्टा इतना टाइम्स हो गया इसके वैल्यू का. इसका वैल्यू अगर इवेल्युएट करने पर अगर मान लो अगर 10 आ रहा है तो इसका वैल्यू इवेल्युएट करने पर क्या आएगा, इतना टाइम्स 10 आ जाएगा. सो इसका वैल्यू जो है वो इसके वैल्यू का इतना टाइम्स है, लैम्डा म्यू डेल्टा टाइम्स है. तो अगर आपको बैलेंस करना है, आप चाहते हो कि दोनों को इक्वल बना दे, तो अगर आप यहाँ पे इक्वल बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा,
इस लैम्डा को बैलेंस करने के लिए आपको बाहर में लैम्डा से डिवाइड करना होगा, इस म्यू को बैलेंस करने के लिए आपको बाहर में म्यू से डिवाइड करना होगा, इस डेल्टा को आपको बैलेंस करने के लिए बाहर में डेल्टा से डिवाइड करना होगा। तो इस तरीका से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। नाउ दीज टू डिमांड्स आर इक्वल। क्लियर? ऑब्वियस इसका वैल्यू लैम्डा, इसका वैल्यू लैम्डा इतना टाइम्स आएगा तो वो लैम्डा में डेल्टा कैंसिल होकर बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? सो ये प्रॉपर्टी आपको क्या अलाउ करता है